Okay, so let's start with the POI content processing system first. What is a CPS? Okay, so see, there are two parts in the CPS. First is quick review, and second is the content review part. Okay, so what is a quick review? Whenever a video comes, is sent by the auditor, by the user. Okay, like user like us is making a video. Okay, then he submit the video to the Zilly app. Okay, so it will come into the quick review part. Okay, so whenever quick reviewer means the reviewer who will be working on the quick review part. What he will do, he will audit some videos, and whatever action he takes, that video goes to the content review part. And what is the task of a content reviewer? uh, you all will be hired as a content reviewer. Okay, so what is the task of a content reviewer? What content reviewer do, that he need to check whether the video is like according to the rules, and you need to give the uh, relatable tag to the video. Okay, see, there are two processes. One is safety review and other one is tag review. This is nothing not need to work on this part. Okay, so your work is to work on the tag review parts. Okay, so what is a tag review process? So whenever you open a window on a tag review, okay, you will see such videos. Okay, like the video and the content of the video, like what is the frame of the video, what are the pictures that are in the video, the screenshot part you will see on the right side. Okay, and you need to watch the video. Just a second, huh? You need to watch the video, then you need to check few rules. For example, if the video if you feel that the video is not a low quality video, or not a private video, or not a deniable video. Okay, like there are some set of standards for low quality, private, and denied videos. Okay, so when you feel that the video is safe to pass in all those categories, then you need to select a particular category for that video. Okay, like for example, when you click on the category part, you will get to see this small frame. Okay, in this part you need to select the relatable tag. For example, if a person is acting in the video, okay, like then you can select the acting, and you can select the acting part, and then the relatable POI. POI means what is the point of interest of the video, like the person is doing duet in the video. Okay, then you need to select the duet part. Okay, then you need to pass the video. Okay, and you need to check if there is any watermark in the video, then it will be then you need to select the watermark tag also. And if there are some Chinese people in the video, then you need to select the China tag. And the dangerous part, like that part that is not like watchable, or that is dangerous to watch, that kind of content you need to mark under the dangerous part. Okay, then you need to click on pass. So this is how you need to work on the videos. Okay, so there are some set of rules, like for example the category options, what I have shown you now. If you are not sure which category it belongs to, then you can skip the video. Okay, and the other part is private or low quality. If you feel the quality of the video is not good, there are some set of rules on the low quality part and the private part that you need to learn first. Okay, if you feel the video is private, then there is no need to choose the category option. Then you need to choose the private or the low quality option only. Okay, for low quality and private videos, there is no need to give any category or POI option. Okay, and if you feel all the video is not at all watchable, like some adult content is there, or some controversial content is there, that should not be shown in the app. Such videos you need to deny, and for that you need to off the video. Okay, so this is how you need to work on the CPS. Okay, so in every page there are 4 to 5 videos in the system. Okay, so whatever you audit, when you exit this part, like you will see the reviewed numbers. Like for example, you have reviewed 5 videos, then it will shown here that you have reviewed 5, or you have passed, like if you have passed 10 videos, then it will show that 10 videos has been passed by you, and 4 or 5 videos have been offed by you. Okay, fault rate, the system will tell you your fault rate, whether you are going right or wrong on the category and the rules part. Okay, so this is how you need to work on the CPS. Okay, so everybody understood the point of how to work on the tag review part. See the total reviewed number you will see here.
Okay, we'll see the total reviewed numbers here. Okay, so सबको clear हो गया इतना part on the how to work on the CPS? Yes, ma'am. Okay, okay. So, see, we'll give you the access of the tag review. Just you need to work on the tag review part only. Okay. So, see what it is showing. It is showing as pending. Pending is like 3713. Okay, and till now the reviewed content is 23850. Okay. So let's start with the POI system training. Okay. So what is a POI and what is the category that I have already told you. Okay, so what is a POI? What is a category? Category is something that you need to check the video. Like if the video is relatable, it is if the video is related to couple. Like see, first category is acting. In acting, there are 5 to 6 POIs. That is couple, comedy acting, lip sync, duet, other acting. Okay, so such these 5 POIs are under the acting part. Okay, so what is the meaning of acting? That if a person is doing some kind of acting, then it will go under the acting part only. Okay, so first one is couple. If a person or people that are acting like a couple, okay, like the videos in which the couple shows affection, cheating, breakup, etc., or even they are doing lip sync on the song. Okay, like they are like sharing their feeling through the lip syncs on the song, then it will be a couple video. Okay, so next is the comedy acting video. What is a comedy acting? Like if the content is related to comedy, even if in the video the person is couple, or the person is like husband wife, or they're like family, or they're like friends, or they're like siblings, all such kind of video, the content is comedy, then it will go into the comedy acting part. Okay, so what is the definition of comedy acting? Acting videos with funny or nonsensical plot, ending aiming to amuse the viewers. Watch completely before judging. Often the funny part would be at the end, usually has marked as funny background as well as the nonsensical part may come at the end. But do not refuse confuse comedy acting with other acting. Can also consist of puppet show and comedy plots. Okay, so whenever there is a video where the person is where one or two people are acting and they're acting in a comedy way. Okay, like the content of the video is comedy, then it will go into the comedy acting part. Let me show you some examples. Okay, so this one is clearly comedy acting. They are like they have actually what is the definition of comedy acting is like when 2 or 3 people like they have or one people is there in the video, when they have like decided or made a like scripted video, like they have planned the video that हम लोग ऐसे plan करके ऐसे stand करेंगे, then ऐसे dialogues को narrate करेंगे, the way they are doing all kind of acting to amuse the viewers in a comedy way, like जिसका result आपको क्या आ रहा है, जिससे जिस वीडियो को देख के आपको हंसी आ रही है, that content will go into the comedy acting part. Okay, so next is the lip sync. Okay, for the lip sync, what is the lip sync? So, lip sync is something like the mouth movement. Uh, the mouth movement is matched with the background audio. Generally, the creator is speaking, singing, or talking. Okay, funny lip sync video should have comedy acting plus lip sync POI. Okay, so if a person is doing lip sync and the content is comedy, then it will go into the comedy acting, obviously. Okay, but yes, for the like, if a person is doing lip sync on a song or background audio, that is not at all funny. Okay, that the concept of the video should not be funny. If the content of the video is funny, then it will go into the comedy acting part. But if the content is not funny, okay, they are doing some kind of lip sync on song or singing or talking, or some they are narrating some kind of a dialogues, then it will go into the lip sync part only. Okay, तो वो lip sync में आएगा. हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. 10-12 साल की लड़कियां आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रही हैं कि प्यार एक धोखा है। अरे मेरा बच्चा, किसने तुम्हें धोखा दिया? डोरेमोन ने। Okay, so uh, next is duet video. What is a duet video? Duet video is something when there are two screens in the video, like there are two frames in the video. Okay, and in
in one of the video, the person is giving his reaction to the another video. That kind of videos will go into the do it part. Okay, let me show you some examples. There should be a vertical screen in the video. Usually the horizontal part of the screen we are marking under the low quality part, but if the screen is vertical, then it will be a do it video. हेलो गूगल, लड़कियों को अपने बस में कैसे करें? कृपया औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करें। Okay, such content where the frame, there are two frames and the frames are basically vertical. अगर ये horizontal होता है, like एक video यहाँ होती है और एक video नीचे होती है, then it will be a low quality video. Okay, that rules I will explain you later. Okay, and the rest part is the other acting. Okay, so the videos that doesn't belong to the above POI that I have mentioned now, all those videos will go into the other acting part. Okay. ओके, सो नेक्स्ट इज अदर एक्टिंग पार्ट. अदर एक्टिंग में वो सब कंटेंट जाएगा जो बेसिकली ऊपर के किसी भी पीओआई में मैच फॉल नहीं कर रहा है. जैसे कि कुछ ऐसा कंटेंट, मीनिंगफुल परफॉर्मेंस कंटेंट दैट डजंट बिलोंग टू अबव, लाइक पीपल एक्टिंग लाइक अ बेगर फॉर सोशल एक्सपेरिमेंट, नॉट अ प्रैंक. ओके, close up transition effects video with catchy facial expressions, sad acting videos only if no other PI like handsome lip sync is suitable, acting plot usually with more than one person. Okay, so all such videos will go into the अदर एक्टिंग. कैसे होता है इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि अदर एक्टिंग में बहुत सारा कंटेंट आता है. जैसे कि कोई फ्रेंड, जैसे कोई किसी को मारने गया है तो उसके साथ दो लड़के और लग के किसी को मारना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे टाइप का वीडियो विल गो इनटू द अदर एक्टिंग पार्ट. किसी का पूरा फेशियल लुक के ऊपर वो मतलब फेस से अलग अलग रिएक्शन बना के दिखा रहा है, एक्शंस दिखा रहा है, फेस के फीचर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, देन इट विल बी अदर एक्टिंग. सैड एक्टिंग वीडियोस, कोई रोता हुआ दिखाया गया है वीडियो में और किसी सॉन्ग पे लिपसिंग नहीं आएगा. ओके, लिपसिंग वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, बट ये सैड एक्टिंग ऑन अ सॉन्ग जहाँ पे सिर्फ एक्ट किया जा रहा है और सिर्फ मतलब कोई लिपसिंग नहीं हो रही है, देन इट विल बी अदर एक्टिंग. एक्टिंग प्लॉट यूजली विद मोर देन वन पर्सन. ओके, इसमें बहुत लोग, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. Okay, such content will go into the other acting part. Okay, such content, this type of content will go into the other acting part. That doesn't basically, जिसमें acting हो रहा है और ऊपर किसी भी other POI से वो match नहीं कर रहा है, then it will be other acting. Okay, next is emotional. What is the meaning of emotional? Emotional का मतलब सबको पता होता है क्या होता है, और उसमें जो उसका POI है, first POI is empathy. Empathy means like the videos that arouse strong empathical or touching feelings of user, usually are emotional short films, video with family love, friendship, social awareness topic, etc. Okay, जैसे कि किसी में फैमिली का लव दिखाया गया है, किसी वीडियो में कोई किसी की हेल्प करते हुए दिखा रहे हैं, जैसे कोई किसी बेगर की हेल्प कर रहा है. ओके, फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, कोई सोशल अवेयरनेस के टॉपिक पे दिखाया गया है, या फिर कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड मतलब दो फ्रेंड्स का उनका लाइक एक दूसरे के साथ बॉन्ड दिखाया गया, फैमिली का बॉन्ड दिखाया गया. ऐसी सभी वीडियोस किस में जाएंगी? एम्पैथी में जाएंगी. ओके, इवन द शायरी पार्ट, अगर कोई शायरी कर रहा है, लाइक ही इज नरेटिंग हिज ओन शायरी, खुद नरेट कर रहा है, लिपसिंग नहीं हो रही है. इफ इट इज अ लिपसिंग वीडियो, देन इट विल गो इनटू द लिपसिंग फर्स्ट, देन टू द एम्पैथी पार्ट. ओके, सो ये प्रेफरेंस पार्ट यू नीड टू राइट डाउन फर्स्ट, कि अगर कोई लिपसिंग कर रहा है, देन इट विल बी अ लिपसिंग वीडियो ओनली अंटिल अनलेस इट इज अ कपल. अगर कपल से रिलेटेड है, देन इट विल गो इनटू द कपल पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज एम्पैथी वाला पार्ट सबको होपफुली क्लियर हो गया होगा. आई विल शो यू सम वीडियोस ऑन एम्पैथी पार्ट. मास्क वाले, मास्क ले लो. मास्क भैया, मास्क चाहिए? हाँ बेटा, कितने का मास्क? भैया 10 रुपए का मास्क है, ये लो. ये ले बेटा, 10 रुपए. मास्क ले लो. मास्क भैया, मास्क चाहिए? मास्क? यार पैसे नहीं है मेरे पास. ये लो भैया, मेरी तरफ से. लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं है. अरे रख लो भैया, मेरी तरफ से. माँ ने कहा था लो.
Okay, like the way they are helping each other, such videos we go into the empathy part, emotional empathy part. Okay, next is motivational. For the motivational part in the video, there will be a speaker, gurus, leader, or KOLs. Okay, having speech or lessons, giving lessons of life philosophy. User will be encouraged or educated by the video. ओके सो इन द मोटिवेशनल पार्ट अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु दिखाया गया है, कोई लीडर दिखाया गया है, व्हाट इज अ केओएल आर दोज लाइक जो यूजर्स बेसिकली जो फेमस होते हैं, जो मतलब जिली के लिए काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, दैट आर द केओएल्स. ओके ओके सो ऑल दीज केसेस विल गो इनटू द मोटिवेशनल पार्ट अगर वो कोई मोटिवेशनल बात कर रहे हैं. ओके आफ्टर द पेट्रियोटिज्म, जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड. ओके Okay, so next is patriotism. What is the patriotism video? Patriotism का मतलब होता है जो भी हमारे patriotism का एक simple सा definition है जो आप सबको याद रखना है, because it can be confusing, but you need to be very clear and very you need to stick to the rules. Okay, it's like अपना आपको इतना mind नहीं use करना है इन rules में, because you just strictly need to follow the rules and only rules. Okay, like the video showing national power, Indian military, development of country, usually with the national flag sticker, include image slideshow of soldiers or meteors. Okay, so if there is a video on a national power, like कोई अपने इंडिया का जैसे कोई दिखा रहे हैं, टैंक वगैरह दिखाया गया है, कोई जैसे राफेल के बारे में दिखाया जा रहा है. Okay, all such videos will go into the पेट्रियोटिज्म. ओके, इमेज स्लाइड शो दिखाया गया है जहाँ पे सोल्जर्स का, जहाँ पे उनकी मार्चिंग दिखाई जा रही है, ऐसी वीडियोस. या फिर नेशनल फ्लैग स्टिकर वाला पॉइंट आप रिमूव कर सकते हो, बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूजिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई झंडे की वीडियो बना रहा है, देन इट विल गो इनटू द अदर स्टेटस ओनली, बट नॉट द पेट्रियोटिज्म पार्ट. ओके, सो पेट्रियोटिज्म का क्लियर डेफिनेशन इज लाइक वीडियो दैट आर शोइंग द नेशनल पावर. ओके, जो वीडियोस नेशनल पावर दिखाई जा रही है, जहाँ पे जैसे कि 26 जनवरी की परेड हो गई, मिलिट्री मार्च हो गया, उनकी पिक्चर्स हो गई, सोल्जर्स की पिक्चर्स हो गई. ओके, और ना कि कोई सोल्जर की यूजलेस पिक्चर्स जहाँ पे वीडियोस ऐसी दिखाई गई हैं जहाँ पे मतलब बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक अ ब्लॉग, दे आर ट्राइंग टू मेक अ वीडियो और वो मीनिंगलेस है. ऐसा कुछ आपको पेट्रियोटिज्म में नहीं मार्क करना है. ऐसी चीज़ें पेट्रियोटिज्म में नहीं आएंगी. ओके, नेक्स्ट इज pets. For the pets part, first is cat. Okay, so cat जिसमें pets में जो भी घर पे रखे cats होते हैं, will go into the cats. Dog में dogs आएंगे. I think this part I don't even need to show you the examples. On the other pets part, okay, so you need to work on this part because these two parts are very important. The other pets and the wild animal. How to differentiate between other pets and the wild animals. Okay, so what is the definition of other pets? As I already told that you need to stick on the rules only. So you need to just like you need to cram these names only. Okay, because only these names will go into the other pet part. Okay, so pets except cats and dog, because cat and dog के already हमारे पास pets का cat and dog का है POI. Okay, तो cat and dog तो cat and dog वाली कैटेगरी में ही जाएगा. But yes, for the other pets part, rabbits, parrot in a cage or outside the cage. Okay, goldfish in a tank, rabbit, hamsters, guinea pigs will go into the अदर पेट्स पार्ट. ओके, सबको क्लियर हो गया पार्ट. अदर पेट्स में सिर्फ और सिर्फ यही वाले पेट्स जाएंगे. दिस पार्ट आई एम क्लियरली टेलिंग यू, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स, you
don't have to mark any other pet into the other pets, even they are looking like a pet. जैसे कि किसी ने घर पे मंकी रखे होते हैं, किसी ने घर पे शेर रखा है, टाइगर रखा है, काऊ रखी है, गोट रखी है, हन रखी है, अगर वो घर में भी वीडियो बना के दिखाया गया है, स्टिल इट विल बी अ वाइल्ड एनिमल ओनली, ठीक है। जो कि जितने भी पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं, जितने भी बेसिकली जितने वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो वाइल्ड हो, वो सब वाइल्ड में ही जाएंगे। कोई भी अदर पेट्स में आप नहीं मार्क करोगे। इवन द पीजन्स, जो पीजन्स जैसे जिनको दाना डाला जाता है, मोस्टली पीजन्स को घर भी रखा जाता है, बट सब उन सबको आपने किस में मार्क करना है? वाइल्ड एनिमल में मार्क करना है। अदर पेट्स में सिर्फ और सिर्फ ये 5 नेम जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सिर्फ वही आएंगे। रेस्ट मंकी, लॉयन, टाइगर, गोट, hen etc will go into the wild animal only. Okay, so this is how you need to focus on the these POIs, because see, rules are something that are very important, and rules पे ही आपको फोकस करना है, बिकॉज मिस्टेक सिर्फ इन्हीं के ऊपर आती है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज किड्स। किड्स में द फर्स्ट पार्ट इज क्यूटी। ओके, सो किड्स का POI इज क्यूटी। क्यूटी मीन्स जो भी बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक द किड्स दैट आर अंडर द एज ऑफ 4, okay, the toddlers or the babies, those are very very cute, will mark under the cutie. Otherwise अगर कोई बच्चा डांस कर रहा है and he's like more than 4 or 5, like he or she is more than 3 or 4 years, then it will be अदर POI। जो कि अगर डांस कर रहा है तो वो डांस में मार्क करो, अगर वो कोई सिंगिंग कर रहा है तो सिंगिंग में जाएगा। बट येस, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ क्यूटनेस पे फोकस है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ओके, सच वीडियोस लाइक सी हाउ क्यूट द गर्ल इज, ऐसे जो क्यूट क्यूट बच्चों वाला वीडियो है, विल गो इनटू द क्यूटी पार्ट ओनली। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स। सो एज वी हैव ऑलरेडी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन द अदर पेट्स पार्ट, कि जो अदर पेट्स में वो 5 नेम है, उनको छोड़ के आप कोई भी अदर पेट्स में मार्क नहीं करोगे, तो उसको छोड़ के जो भी एनिमल आपको दिखाया जाएगा वीडियो में, इट विल बी अ वाइल्ड एनिमल ओनली। ओके, सो वाइल्ड एनिमल में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। एनिमल्स दैट आर केप्ट इन एक्वेरियम, ओके, जू एंड एक्वेरियम। जो जू में रखे जाते हैं एक्वेरियम में गोल्ड फिश को छोड़ के, बाकी कोई भी फिश दिखाई गई है एक्वेरियम में, देन इट विल बी अ वाइल्ड एनिमल ओनली। पोल्ट्री animals like chicken, hen, pig, duck, horse, cow, goat, etc. will go into the wild animal. Animals seen in the wild or land or water, crocodile, lion, tiger will go into the wild animals. Bees or insect video will also be a wild animal. Okay, so bees and insects को भी अपने wild animals में mark करना है। बेटा खड़े हो, चल अंदर। दूध नहीं पिया? Please off your mic, Preeti, please off your mic. हमारे बाकी मान देती। Okay, so ओके, सो फॉर द वाइल्ड एनिमल, जो पिजन्स होते हैं, पिजन्स को भी अपने वाइल्ड एनिमल में ही मार्क करना है। ओके, इट इज नॉट रिटन हियर, बट यू नीड टू फॉलो एज आई हैव टोल्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट POI इज स्टंट। सो व्हाट इज अ स्टंट? अगर कोई किसी बाइक पे, किसी कार पे, कोई साइकिल पे अगर कोई स्टंट परफॉर्म कर रहा है ऑन एनी काइंड ऑफ अ व्हीकल, आइदर इट इज अ ट्रैक्टर, बाइक, कार, ट्रक, इवन ऑटो, अगर उसमें स्टंट परफॉर्म किया जा रहा है, देन इट विल बी अ स्टंट वीडियो। लाइक कार, बाइक ऑलमोस्ट जंपिंग इन द एयर और रेगुलर और मडी रोड while in a very high speed will also be a stunt. Okay, like कोई कार किसी मडी रोड पे बहुत तेजी से फास्ट भगाई जा रही है, ऐसी सब वीडियोस को स्टंट में ही मार्क करना है, until unless वो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना हो। अगर कोई स्पोर्ट्स का 3-4 गाड़ियों की रेसिंग दिखा रहे हैं, then it will not be a stunt video, then it will come under the car POI. Okay, so what is the definition of car? Car display, luxurious car, new cars, modified cars, etc. will go into the cars. Must have meaningful content, not those videos which show random car backside recording or on the road, or the meaningless racing car like F1 to be included but should not be a stunt. Okay, so कार का डेफिनेशन एक क्लियर है। अगर कोई गाड़ी के अंदर से बैठ के शूट कर रहा है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर कोई अंदर से गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहा है, देन इट विल बी ए लो क्वालिटी वीडियो। ओके, इट शुड नॉट कंसीडर अंडर द कार POI। ओके, कार में सिर्फ कार रेसिंग आएगा, और दूसरा आएगा अगर कोई लग्जूरियस कार का बहुत क्लोजली फोकस है, मतलब पूरा फोकस इज ऑन द कार। अगर कोई बाहर से कार चलती हुई दिखाई जा रही है एंड प्रॉपर कार पे फोकस नहीं है, देन इट विल बी ए लो क्वालिटी वीडियो। आई विल शो यू सम एग्जांपल।
Guys, check this out. What? How cool does that look? I'm going to show you around. This honeycomb shaped air vent feeds air into the batteries. Look at this honeycomb carbon fiber body. Okay, like the way she's showing off the car. Okay, car पे पूरा focus है. Such videos will go into the car, rest will go into the low quality. If like कार कहीं दूर से आ रही है, उसका वीडियो बना रहे हो और वो बहुत ही यूजलेस है, मतलब कोई भी ऐसे रैंडम कार उठा के उसकी वीडियो बना दी गई है दूर से आती हुई कार की, तो वो लो क्वालिटी में जाएगी. बट यस, अगर कार पे पूरा फोकस है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया, कार को अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा है, या फिर पूरा ही पूरा फोकस कार पे है और कार की रेसिंग की वीडियोस दिखाई जा रही है, लाइक F1, देन इट विल बी कंसिडर्ड अंडर कार पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज मोटर बाइक. सो सेम गोज फॉर द मोटर बाइक. मोटर बाइक का जैसे अनबॉक्सिंग, मोटर बाइक का कंपैरिजन दिखा रहा है, जैसे बाइक मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं, बाइक के ऊपर पूरा फोकस है. रेसिंग बाइक, जहाँ पे बाइक की रेसिंग होती है, उसको भी आप मोटर बाइक में इंक्लूड करोगे, बाइक रेसिंग को. बट येस, अगर स्टंट है तो वो स्टंट में ही जाएगा. ओके, जितने भी स्टंट वाले वीडियो है मोटर बाइक के, स्टंट में ही जाएंगे. अगर कोई बहुत दूर से बाइक चलाते हुए आ रहा है और कोई ऐसे ही रैंडम पर्सन है, कोई रेसिंग का वीडियो नहीं, देन इट विल बी a low quality video only. Okay, so next is other transport. Okay, so the rest part, where the other vehicles are there, like transportation related, तो जिससे हम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे बाईसाइकिल पे, बस का वीडियो. यहाँ पे कोई भी स्टंट वाला वीडियो नहीं आएगा, जस्ट द नॉर्मल वीडियो, जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है, कोई बस चला रहा है, बस का वीडियो है, कोई लार्ज ट्रक दिखाया गया है, एरोप्लेन है, बोट है, सबमरीन है, हेलीकॉप्टर है, एंड सम अदर ट्रैक्टर्स. Okay, so such videos will go into the other transport. But yes, how to differentiate between other transport and machinery, because there are some points that can be included into the machinery part also. So must have a meaningful content, not just showing the other transportation. Okay, थोड़ा meaningful. अगर बहुत ही meaningless लग रहा है, then it will be a low quality content. Okay, so for tractors, those running on road as a transportation should go into this tier. Okay, तो अब एक छोटा सा point है, that is a subjective point. अगर कोई ट्रैक्टर रोड पे ट्रैवल कर रहा है, then it will be a other transport video. बट यस, अगर कोई ट्रैक्टर फील्ड या फार्म्स में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहा है, तो वो किस में आएगा, मशीनरी में आएगा. ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइक जैसे क्रेन हो गई, ट्रैक्टर हो गया, सच थिंग्स दैट इफ दे आर वर्किंग इन द फील्ड और फार्म, जैसे खेतों में काम कर रहे हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो वो मशीनरी में जाएंगे. अदरवाइज अगर वो रोड पे चल रहे हैं, देन इट विल बी अदर ट्रांसपोर्ट वीडियो. ओके, सो होपफुली सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज कॉमेडी. कॉमेडी का फर्स्ट पार्ट इज प्रैंक. प्रैंक इज अ वेरी सिंपल थिंग. प्रैंक इज समथिंग जहाँ पे कोई किसी पे कोई प्रैंक प्ले कर रहा है. ओके, जिसमें दूसरे को एम्बेरस किया जा रहा है. जैसे आप प्रैंक की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी भी होगी अपने यूट्यूब पे, ऐसी वीडियोस विल गो इनटू द प्रैंक पार्ट. नेक्स्ट इज डेली फन. सो डेली फन इज समथिंग जिसका कंटेंट बहुत कम आता है, सो यू नीड टू इग्नोर दिस पार्ट. ठीक है, तो डेली फन और कॉमेडी एक्टिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना. डेली फन का मतलब होता है जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग थिंग्स कर रहा है लाइफ में, जो कि स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब जिसको एक प्लान करके नहीं किया गया. जैसे कि कोई एक हम अपनी बात लगाते हैं, अगर हम कोई ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कुछ मस्ती कर रहे हैं, जो कि हमने प्लान नहीं करी. ओके, कोई प्लान करके नहीं बना रहे हैं, बट हमने कुछ वीडियो में ऐसा कैप्चर कर लिया जिसको देख के बहुत हंसी आ रही है. जैसे कि कोई खेल रहे हैं आपस में, है ना, बच्चे खेल रहे हैं और हमने उनका एक वीडियो कैप्चर कर लिया, जबकि उनका ध्यान भी नहीं है वीडियो पे. बट यस, वो एक कहते हैं ना, एक हीट ऑफ द मोमेंट में आपने एक अच्छा सा वीडियो बना लिया जिसमें आपको देख के, उनको देख के हंसी आ रही है, बट वो कुछ प्लान्ड नहीं था. ऐसे वीडियोस विल गो इनटू द डेली फन पार्ट. ओके, जैसे कि कोई 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं, ओके, पार्टी में बैठे हैं और वो लोग किसी बात पे हंस रहे हैं, दैट काइंड ऑफ कंटेंट दैट लुक्स फनी टू यू विल गो इनटू द डेली फन पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज फेल्स. ओके, सो डेली फन वाला पार्ट यू नीड टू लाइक इग्नोर करना है. इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं आती हैं, तो जितना कम वीडियोस इसमें मार्क करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज द फेल्स पार्ट. Failing in a funny way, which while trying to achieve something. Failing while riding motorcycle from slide banging onto into the pole. फेल्स मतलब बेसिकली कुछ करने का ट्राई किया गया है, बट वो कर नहीं पाया और उसमें फेल हो गए. जैसे कि कोई पोल डांस करते करते गिर गया. ओके, कोई स्विमिंग पूल में स्लिप हो गया, कोई बाइक चलाते चलाते गिर गया. जिन वीडियोस को देख के थोड़ी सी हंसी आती है, जैसे कि कैट्स हो गई, कैट्स घर में रखी होती हैं तो गिर जाती हैं, या फिर कोई स्विमिंग पूल में फिसल गया है, ऐसी वीडियो. किसी ने पोल में बैंग कर लिया है, मतलब सिर मार लिया अपना, विल गो इनटू द फेल्स पार्ट. एग्जांपल देख लेते हैं.
such video like where people are falling basically will go into the fails part. Okay, so नेक्स्ट और फेल्स में भी कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं जाएगा, ये यूजुअली वही कंटेंट होता है कि जिसमें बेसिकली सब एक्चुअली मस्ती कर रहे थे पर मस्ती करते करते फेल हो गए, नॉट द स्क्रिप्टेड कंटेंट। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं आएगा जो पहले से प्री प्लान हो, बिकॉज ये जो वीडियो देखा ये कोई प्री प्लान नहीं है, दे वर जस्ट गोइंग टू देयर वे, बट बाइक पे बैठते वो एक फिसल गए और नीचे गिर गए। ओके, तो नेक्स्ट इज स्टैंड अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी? स्टैंड अप कॉमेडी एक टिपिकल टाइप ऑफ कॉमेडी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक पूरा ब्लैक 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 स्क्रीन होता है, वहाँ पे ब्लैक स्टेज होता है, उसके पीछे एक लिखा होता है लाफिंग लाफ्टर या समथिंग कुछ ऐसा, और इस पे एक कॉमेडियन खड़ा होके कुछ ऑडियंस के साथ बातें कर रहा होता है, उनको एक मतलब फनी जोक्स क्रैक करता है, उनको समझाता है जोक्स। दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस विल गो इनटू द स्टैंड अप पार्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, इसको छोड़ के कुछ भी स्टैंड अप में नहीं आता है, तो मेक श्योर करना ऐसा ही प्लेटफॉर्म हो और वो फनी हो। अगर वो फनी है देन इट विल गो इनटू द स्टैंड अप। ये फिल्मों में होता है, जज साहब फाड़ दीजिए कानून की ये किताबें, जज गांड फाड़ देगा। ओके, लाइक सच वीडियोस जहाँ पे कि एक कॉमेडियन खड़ा है, माइक लेके खड़ा है, एंड ही इज लाइक टेलिंग सम काइंड ऑफ जोक्स दैट आर वेरी फनी, विल गो इनटू द स्टैंड चूतियों के शहर में हम चले थे समझदार बनने, चूतियों के शहर में हम चले थे समझदार बनने, थोड़ा समय लगा लेकिन हम भी चूतिए बने। ओके, सच वीडियोस जहाँ पे पूरा एक प्लेटफॉर्म दिखाया गया है, विल गो इनटू द स्टैंड अप। स्टैंड अप अब देखो कैटेगरी कॉमेडी है तो जितना भी कंटेंट कॉमेडी है सिर्फ और सिर्फ वही इसमें आएगा। ओके, ना कि कोई मतलब जिसमें हंसी नहीं आ रही है वो वाला कंटेंट। नेक्स्ट इज मीम्स। व्हाट इज अ मीम? Combination of video, text, typical humorous and nature that is copied and spread rapidly by the internet users. Basically मेम का मतलब ये होता है कि कोई टेक्स्ट लिखा हो किसी वीडियो के ऊपर, ओके, एंड उससे रिलेट करके वीडियो बनाया गया, दैट काइंड ऑफ कंटेंट विल गो इनटू द मेम्स पार्ट। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ बिकॉज दिस कैन नॉट बी लाइक आपको समझाया नहीं जा सकता थ्रू द वर्ड्स, यू नीड टू वॉच दीज वीडियोस। You have seen like so many videos on Facebook. If you are on Facebook or Snapchat or Instagram, you can see such kind of videos like where there is some kind of a written text is there and the video is relating to that text. Like for example, WhatsApp group में सिर्फ झांकने वाला तो उसको भी थप्पड़ पड़ा, दैट काइंड ऑफ वीडियोस लाइक जहाँ पे रिलेट करने की कोशिश किया गया है वीडियो को टेक्स्ट के साथ, विल गो इनटू द मेन पार्ट। और या फिर 2-3 वीडियोस का से जैसे 2-3 मूवी क्लिप्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बना लिया जिससे जोड़ के, जैसे कि दिखाते हैं नहीं नरेंद्र मोदी का वीडियो है उसके साथ फिर कोई मूवी क्लिप की, ऐसे जो वीडियोस आते हैं यहाँ पे 2-3 क्लिप्स को जोड़ के कुछ हंसी वाला पार्ट बनाया गया, देन इट विल बी अ मेन वीडियो। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज अदर फनी। So for the other funny part, funny video is not included in above category. Slideshow types of text jokes. Okay, तो जो भी slide show, what is a slide show? Like एक के बाद एक picture आ रही है video में. Like there is no video, like but one there will be a slide show of pictures. एक के बाद एक पिक्चर आ रही है और उस पिक्चर के ऊपर बहुत सारे जोक्स लिखे हैं या फिर एक ही जोक लिखा है, सच काइंड ऑफ कंटेंट विल गो इनटू द अदर फनी। या फनी स्ट्रीट इंटरव्यू हो गया, वो किस में जाएगा? अदर फनी में जाएगा। एक आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। Okay, such kind of content can also go into the other funny part. Like जो ऊपर के वीडियो POI से मैच नहीं कर रहा है वो other funny में आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जो मैं बता रही हूँ स्लाइड शो वाला, अगर इसमें नहीं मिलता है मुझे। Okay, so this one is not other funny video. Yeah, we can consider such videos under other funny, but yes, slideshow wala I will show you some examples after this one. Okay, so other funny का हम एक बार ही देख ही लेते हैं because I have some cases that were marked as other funny. Just a second. Okay, I will show you later. Let's just complete the training part first. Then I will show you some examples on other funny part. Okay, so next is culture. What is a culture? Culture is like something that represents your religion or your way of living or your clothing or your festivals. All such videos will go into the culture part. So first a POI under culture is horoscope. If a person is trying to tell you your future through the video, or they are showing the tarot card reading video, constellations video, divination or palmistry जहाँ पे लाइक हाथ पढ़ के दिखा रहे हैं या आपका राशिफल बताया जा रहा है, such kind of videos will go into the horoscope part. Next is Hindu. If there is a Hindu god in the video,
ओके, उसका वर्शिप करते हुए दिखा रहे हैं, उसके ऊपर कोई सॉन्ग चल रहा है या कोई रिलीजियस इमेज है, जैसे कृष्ण भगवान की पिक्चर्स हैं, उस पर आरती आ रही है, देन इट विल बी अ हिंदू culture, Hindu video. Same goes for Islam. If someone is telling some like some words from their book, what we call it, I just forgot the name of the book. um, कौन सी नमाज, like if they are just narrating some kind of नमाज in the video, and if there is like किसी भी चीज़ का वीडियो बट पीछे बैकग्राउंड में नमाज चल रहा है, देन इट विल बी इस्लामिक वीडियो, या फिर किसी दरगाह की पिक्चर्स है या वीडियोस है, ऑल सच काइंड ऑफ वीडियोस विल गो इनटू द इस्लाम. ओके, सो हिंदू के लिए हिंदू वाला और इस्लाम के लिए इस्लाम वाला. बाकी जो अदर रिलीजन्स हैं जैसे कि जैन, क्रिश्चियनिटी, सिख, जुडाइज्म, ये सब किस में जाएगा, अदर रिलीजन में जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज द इवेंट्स पार्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज समथिंग लाइक जहाँ पे किसी का फेस्टिवल दिखाया जा रहा है. ओके, सो कल्चर में एक इवेंट पार्ट आता है जिसमें अगर किसी का कोई फेस्टिवल दिखाया गया है, जैसे कि दिवाली है, दशहरा दिखाया जा रहा है, या फिर कोई शादी का कोई फंक्शन चल रहा है, जैसे कि वरमाला एक्सचेंज किए जा रहे हैं, या फिर वो जो शादी की बात की रस्में होती हैं, है ना, जिसमें लाइक वो रिंग वगैरह ढूंढते हैं, ऑल सच काइंड ऑफ वीडियोस विल गो इनटू द इवेंट्स पार्ट. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज नॉट प्लेबल. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. बट येस, इफ समवन इज डांसिंग इन द ट्रेडिशनल मैरिज, मतलब कोई शादी की वीडियो है जिसमें कोई डांस कर रहे हैं, वो इसमें नहीं आएगा. सिर्फ और सिर्फ जिसमें किसी का कल्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुओं में शादी कैसी होती है, बंगालियों में शादी कैसी होती है, महाराष्ट्रियन कैसे शादियाँ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनका जो कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ वीडियो. लाइक शादी की बाद के रस्में हो गई, फेरे कैसे कर रहे हैं, लावा कैसे ले रहे हैं, वो सब किस में जाएगा, इवेंट्स में जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज belly dance. Okay, next is very important POI, that is dance. Okay, so what is the meaning of dance? Like किसी कोई भी डांस कर रहा है तो डांस में there are 4-5 POI. फर्स्ट इज बेली डांसिंग. यहाँ पे टिपिकली बेली डांसिंग हो रही है, जहाँ पे लाइक बेली और हिप की मूवमेंट है. प्रॉपर बेली डांसिंग का मतलब होता है प्रोफेशनल बेली डांसिंग, जहाँ की जा रही है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि 2-3 ठुमके मार लिए तो उसको बेली डांस कर दिया, ऐसा नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ अच्छी वाली बेली डांसिंग होनी चाहिए, देन इट विल बी अ बेली डांस ओनली. ओके, नेक्स्ट इज देसी डांस. ओके, सो व्हाट इज अ देसी डांस? देसी डांस का थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा देसी डांस और अदर डांस का. व्हाट इज अ देसी डांस? बेसिकली देसी डांस का जो डेफिनेशन है और मॉडर्न डांस का, कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है देसी डांस और मॉडर्न डांस में. तो मॉडर्न डांस और देसी डांस को अपने जज करना थ्रू द बीजीएम. बीजीएम इज द बैकग्राउंड म्यूजिक. इफ द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ द वीडियो इज देसी, लाइक देसी मीन्स हमारा जो इंडियन कंटेंट है, इंडियन सॉन्ग्स हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, जो भी इंडियन भाषाएं हैं, गुजराती, ऐसी जो इंडियन भाषाएं हैं, अगर उनके ऊपर कोई डांस हो रहा है, देन इट विल बी अ देसी डांस. ओके, अगर कोई सॉन्ग दैट इज नॉट इंडियन, लाइक मॉडर्न सॉन्ग है, मॉडर्न सॉन्ग इन सेंस वेस्टर्न म्यूजिक है, इंग्लिश सॉन्ग चल रहा है या किसी और कंट्री का सॉन्ग है, देन इट विल बी अ मॉडर्न डांस. ओके, डिस्पाइट वॉट एवर दे आर डूइंग इन द वीडियो, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग पे कोई जैज जुम्बा ही क्यों नहीं कर रहा है, स्टिल इट विल बी अ देसी डांस ओनली. ओके, यू जस्ट नीड टू जज बाय द बैकग्राउंड म्यूजिक, कि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हिंदी, पंजाबी, तेलुगु कुछ भी है, चाहे उस पर कोई भी डांस फॉर्म कर रहे हैं, कोई भी मतलब कोई भी चाहे मॉडर्न डांस फॉर्म भी क्यों नहीं कर रहे हैं, स्टिल इट विल बी अ देसी डांस ओनली. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, फॉर द मॉडर्न डांस सेम चीज़ थोड़ा उल्टा है कि उस पर भी बैकग्राउंड म्यूजिक देखना. अगर बैकग्राउंड म्यूजिक इंग्लिश है, चाहे वो कोई सा भी डांस कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश मतलब मॉडर्न डांस में ही आएगा. ओके, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. So basically she is not wearing first of all desi clothes. These are not the desi clothes. तो कपड़ों से तो बिल्कुल जजमेंट नहीं आपने पास करना, बस सॉन्ग देखना है. अगर सॉन्ग हिंदी है तो देसी है, अगर इंग्लिश है तो मॉडर्न है, बस ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है. ओके, सो व्हाट इज द कंफ्यूजन हेयर इज लाइक हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देसी डांस एंड द अदर डांस, बिकॉज यहाँ पे एक अदर डांस का भी ऑप्शन है. ओके, वन मोर इज देयर इन द मॉडर्न डांस दैट आई हैव स्किप्ड, कि जो मॉडर्न डांस होता है, अगर उसमें कोई प्रॉपर फिंगर डांसिंग कर रहा है, फिंगर डांस इज टूटिंग, टूटिंग बोलते हैं आई थिंक इसको. तो जिसमें क्या आ रहा है, टूटिंग की जा रही है, उसको मॉडर्न डांस बोल सकते हैं. और ऐसी वीडियोस में चाहे सॉन्ग हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे इंग्लिश है, वो मॉडर्न डांस में ही आएगा. मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाती हूँ मॉडर्न डांस का. व्हाट इज द फिंगर डांस? उसको हम बेसिकली फिंगर डांस बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज अ फिंगर डांस? दिस आर कॉम्प्लिकेटेड. ओके, दिस इज कॉल्ड.
ओके, सच कंटेंट जहाँ पे मतलब प्रॉपर एक वो हैंड मूवमेंट ऐसे है, इससे में क्या कर रहे हैं वो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस इज अ डांस फॉर्म बेसिकली। और इसका जो म्यूजिक है वो हिंदी वो भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, बट इसको अपने मॉडर्न डांस में मार्क करना है। ओके, सो दिस इज एक्सेप्शन इन द मॉडर्न डांस। ओके, सो व्हाट इज अदर डांस? एंड अदर डांस और देसी डांस बहुत सिमिलर है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो व्हाट इज अदर डांस? देखो, जो भी कोई शादी में, किसी इवेंट में, कोई किसी भी टाइप के इवेंट में कोई डांस कर रहा है तो वो अदर डांस में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी वाला डांस, पार्टी वाला डांस, किसी इवेंट वाला डांस, सब टाइप का डांस अदर डांस में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज टिकटॉक के जो फेमस म्यूजिक्स होते हैं, जो मतलब आपको दिखता है कि आपने ये वीडियो ना कम से कम 50 लोगों को ऐसी वीडियो पे सॉन्ग ऐसे सॉन्ग्स पे डांस करते हुए देखा है। सच काइंड ऑफ म्यूजिक जो कि बहुत पॉपुलर है टिकटॉक पे, वो भी अदर डांस में मार्क करोगे। देन इज सिंपल साइन लैंग्वेज। देखो, फिंगर डांस और सिंपल साइन लैंग्वेज डांस में फ़र्क होता है। फिंगर डांस का मतलब है कि कोई भी उंगलियां ऐसे हिला के दिखाएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है मूव करनी। और जो फिंगर मूवमेंट से एक मतलब समझाने की कुछ कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज बेसिकली जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनको समझाने की कोशिश किया जा रहा है सॉन्ग के लिरिक्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। so see, this is not a finger dance. What she is trying to do, she is trying to explain the song through her fingers and facial expression. मतलब वो अपने उंगलियों से समझाने की कोशिश कर रही है कि लिरिक्स क्या है सॉन्ग के। तो ऐसा जो डांस होगा वो अदर डांस में मार्क करना है। सो यू नीड टू रिवाइज दिस कंटेंट, these rules, because these are very very important. You strictly need to follow these rules only. Next is entertainment celebrity. ओके, सो कोई भी जो सेलिब्रिटी है उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, कोई गॉसिप आती है, उनकी कोई डेली लाइफ का इंटरव्यू है, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, इवन दे आर WWE सेलिब्रिटीज, इट विल गो इनटू द सेलिब्रिटी पार्ट ओनली। नेक्स्ट इज मूवी क्लिप। मूवी का जो भी कोई वीडियो आएगा वो मूवी क्लिप में जाएगा, जहाँ पे कोई लव सस्पेंस ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। अगर कोई मूवी क्लिप के सॉन्ग है जहाँ पे बेसिकली डांसिंग या सिंगिंग पे फोकस है, देन वो म्यूजिक वीडियो में मार्क करना है अपने। ओके, सो नेक्स्ट इज टीवी शो। टीवी शो में भी सेम वही है, टीवी शो के क्लिप्स टीवी शो में जाएंगे। एनिमेशन में कौन सी वीडियोस जाती हैं? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एनिमेशन वाला पार्ट भी इज क्वाइट ट्रिकी। सो एनिमेशन में जितने भी कार्टून्स का वीडियो है, विल गो इनटू द एनिमेशन पार्ट। ओके, वन मोर इज देयर, लाइक जो पबजी की गेम्स होती हैं, पबजी, फ्री फायर, ये सब गेम्स होती हैं, अगर उसमें शूटिंग पे फोकस नहीं है, मतलब हमारे पास एक शूटिंग गेम का भी ऑप्शन है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो जहाँ पे शूटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एक होता है ना गेम में सिर्फ 4-5 लोग इधर उधर भागते हुए दिखा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, या फिर कंटेंट थोड़ा हट के है, मतलब गेम से तो कुछ रिलेटेड है ही नहीं है उसमें, लाइक कोई शूटिंग नहीं है। शूटिंग का मतलब जहाँ पे गोलियां चल रही हैं वो शूटिंग में आएगा, जहाँ पे गोलियां नहीं चल रही हैं वो एनिमेशन पार्ट में इंक्लूड होगा। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं। ओके, दिस इज एनिमेशन। एक और देख लेते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो एनिमेशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जो कि मेरे पास अभी होगा। सॉरी। एग्जाम्पल ओके, देखो, जैसे आप एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे कि एग्जांपल है, ये बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग दिखाया गया गेम का। ओके, तो ऐसी वीडियोस ये सब शूटिंग गेम में जाएंगी।
बेसिकली जब जहाँ से कि आप एक स्टार्ट कर रहे हो, गेम स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको जो चूज़ करना है, मतलब जैसे कि वेपन चूज़ करना है, वो सब शूटिंग गेम में जाएगा। बट यस, अगर कंटेंट में कुछ भी एनिमेशन है या फिर शूटिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है, देन वो एनिमेशन में जाएगा। ओके, आई विल शेयर यू सम एग्जांपल्स आफ्टर दिस मीटिंग। नेक्स्ट इज फैशन। फैशन की जो फर्स्ट पीओआई है इज मेंस फैशन। मेंस फैशन में जो भी मेन के फैशन से रिलेटेड, लाइक मेन के हेयर स्टाइल, उनका बियर्ड, उनका वॉचेस, उनके शूज, उनके चप्पल, सब कुछ विल गो इनटू द मेंस फैशन। इवन द ट्रांजिशन वीडियो, लाइक जिसमें दिखाते हैं कि पहले एक लड़का बहुत गंदा दिख रहा है, देन उसने बाद में मेकअप वगैरह करके पूरा अपना मतलब लुक चेंज कर लिया, वो भी मेंस फैशन में जाएगा। सेम गोज फॉर द वुमेन आउटफिट। अगर वुमेन कोई अच्छा आउटफिट वगैरह चेंज करके जा रही है तो इट विल बी अ वुमेन आउटफिट। वुमेन के क्लोथ, बैग, शूज, आउटफिट, डिजाइन, ज्वेलरी विल गो इनटू द वुमेन आउटफिट। हेयर स्टाइल जहाँ बना रहे हैं वो हेयर स्टाइल में आएगा, वुमेन हेयर में। मेहंदी वाली वीडियो, मेहंदी हैंड फुट पे, वो मेहंदी में आएगा। मेकअप में अगर कोई मेकअप ट्रांजिशन दिखा रहा है विल गो इनटू द मेकअप। जैसे किसी मेकअप प्रोडक्ट पे रिव्यू दिया जा रहा है, स्किन केयर टिप्स बताए जा रहे हैं, स्किन केयर में जाएगा। मैनीक्योर दिखाया जा रहा है, जैसे कि नेल पेंट वगैरह लगा के दिखाई जा रही है, विल गो इनटू द मैनीक्योर पार्ट। एंड फॉर द अदर फैशन विच डजंट बिलोंग टू द अदर फैशन पीआईज, लाइक टैटू और पियर्सिंग, जैसे कोई टैटू बना रहा है या पियर्सिंग कर रहा है, तो वो किस में जाएगा? अदर फैशन में। इवन द कैलीग्राफी, जो कैलीग्राफी करते हैं ना हाथ के ऊपर, जैसे कुछ आर एस लिख रहे हैं हाथ या स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो भी अदर फैशन में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फूड। फूड का जो फर्स्ट पार्ट इज कुकिंग। कुकिंग में जो भी कोई कुकिंग का दिखा रहे हैं, मतलब कुछ खाना वगैरह बनाना दिखा रहे हैं, चाहे वो मिनिएचर है, चाहे वो बिग है, सब सब किस में जाएगा? कुकिंग में जाएगा। ओके, लो कुकिंग के बाद आता है ईटिंग। अगर कोई जैसे मुकबांग वीडियोज है जहाँ पे वो खाना खाते हुए दिखा रहे हैं, वो ईटिंग में जाएगा। रैंडम ईटिंग, अगर कोई ऐसे ही आलतू फालतू बैठ के, ऐसे ही चार लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ भी खाने में फोकस नहीं है, जैसे ऐसे एक रैंडम बकवास सा वीडियो बनाया, तो वो लो क्वालिटी में जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्रिंक्स। ड्रिंक्स रिलेटेड वीडियोस, अगर कोई ड्रिंक बनाते हुए दिखा रहे हैं या फिर कॉफ़ी, मॉकटेल, कॉकटेल, ऐसी वीडियोस जिनकी वीडियोस दिखा रहे हैं, वो ड्रिंक्स में जाएगा। ओके, सो फोकस शुड बी ऑन दैट पार्ट ओनली। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप। ओके, लाइक सच वीडियो जहाँ पे फोकस इज ऑन द ड्रिंक ओनली। अगर चार लोग बैठ के कुछ पी रहे हैं तो वो ड्रिंक्स में नहीं जाएगा, देन वो लो क्वालिटी या ब्लॉग में जाएगा, बट ड्रिंक्स में नहीं आएगा। ड्रिंक्स में पूरा फोकस ड्रिंक पे होना चाहिए। खाने की बात कर रहे हैं, कुकिंग की बात कर रहे हैं, तो पूरा फोकस खाना बनाने पे या खाने की रेसिपी दिखाने में जाना चाहिए। अगर ईटिंग की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर एक मुकबांग शो होना चाहिए जहाँ पे वो क्लियरली दिखा रहा है कि दिस इज दैट, दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग, दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग, एंड लाइक प्रॉपरली, प्रॉपर वे में। जो अच्छे वीडियोज होते हैं सिर्फ उन्हीं को वी आर रिकमेंडिंग, अदरवाइज रेस्ट ऑल वीडियोज यू नीड टू मार्क अंडर द लो क्वालिटी पार्ट। लो क्वालिटी मतलब जिनको बेसिकली अच्छी क्वालिटी में या फिर अच्छे वे से बनाया नहीं गया है, ऐसी सब वीडियोस लो क्वालिटी में आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट मतलब कोई भी मीठी चीज़ दिखा रहे हैं, उसका जैसे बूफे वगैरह हो गया, मीठी चीज़, ऐसी वीडियोस जहाँ पे पूरा फोकस इज ऑन दैट स्टफ ओनली। ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उनकी कटिंग या उनकी चॉपिंग दिखा रहे हैं, उनका कोई ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना रहे हैं, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आएगा। नेक्स्ट इज डिशेज। डिशेस में अगर कोई भी अच्छे डिश, दैट इज नॉट अ डिजर्ट। डिशेस का मतलब होता है जो कि पर्टिकुलर मेन्यू हो गया, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, दाल, ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं किसी बूफे में, विल गो इनटू द such kind of videos will go into the dishes part. Okay, so अगर यहाँ पे कुछ मीठा है तो मीठा will go into the dessert only. Okay, so next is game. गेम का शूटिंग, गेम का जैसे मैंने बताया, अगर पूरा फोकस इज ऑन द चेंजिंग ऑफ कॉस्ट्यूम, लाइक स्टार्टिंग में वीडियो में जैसे आपने एक कैरेक्टर चूज किया, उसके कॉस्ट्यूम क्या चूज किया, देन उसके बाद वेपन क्या चूज किया, विल गो इनटू द शूटिंग गेम। या फिर वो बिल्कुल लड़ाई करते हुए दिखा रहा है, मतलब एक को जैसे गोलियां मारते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोलियां चल रही हैं, सिर्फ इस चीज पे फोकस रखना है। उसको छोड़ के जो भी कंटेंट आएगा, जैसे कोई डांस कर रहा है पबजी कैरेक्टर, या फिर कुछ एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं पबजी में, वो सब किस में जाएगा? एनिमेशन में जाएगा, ना कि शूटिंग गेम में। शूटिंग गेम में सिर्फ और सिर्फ फोकस शुड बी ऑन द शूटिंग ओनली एंड द ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर। ओके, सो अदर गेम में बाकी जितनी भी ऑनलाइन गेम है, जैसे कि कैजुअल गेम्स, कार्ड गेम्स, या फिर ये अपनी कैंडी क्रश टाइप की गेम्स हो गई, वो अदर गेम में जाएंगी। ऑफलाइन गेम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि पार्टी गेम, नो नो, ऑफलाइन गेम्स नहीं आएंगी इसमें, सारी ऑनलाइन गेम्स ही आएंगी, सॉरी। ऑफलाइन गेम्स जैसी होती हैं जिसमें कार्ड्स खेलते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं, वो सब व्लॉग में जाएगा, वो अदर गेम में नहीं जाएगा। अदर गेम में और शूटिंग गेम में, गेम में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम्स ही जाएंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम्स जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज गुड लुकिंग। गुड लुकिंग का फर्स्ट पार्ट इज प्रिटी एंड सेकंड इज हैंडसम। Okay, so as I already told कि that we are focusing on the preferences part. So when we talk about the preferences,
तो अगर कोई बहुत सुंदर लड़की किसी सॉन्ग पे लिपसिंग कर रही है तो उसकी पहली प्रेफरेंस लिपसिंग ही होगी, देन गुड लुकिंग आएगा, ठीक है। तो अगर कोई हैंडसम लड़का, तो प्रिटी का बेसिकली डेफिनेशन ये है कि लड़की कुछ नहीं कर रही है वीडियो में, जस्ट बैठी है, या फिर वो आगे से चल के आ रही है वीडियो में, जिसपे वो बेसिकली अपनी लुक्स दिखाना चाहती है, जहाँ पे वो अपने पूरे बॉडी कर्व्स दिखा रही है, उसके पूरा फेस पे फोकस है, वो कोई डांस नहीं कर रही, कोई सॉन्ग नहीं गा रही है। अगर डांस कर रही है तो डांस में जाएगा, सॉन्ग गा रही है तो लिपसिंग, मतलब अगर लिपसिंग कर रही है तो लिपसिंग में जाएगा, अगर सिंगिंग कर रही है तो सिंगिंग में जाएगा। अगर कोई मतलब सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस बना के दिखा रही है कि जैसे कि कोई पीछे डायलॉग चल रहा है कि मेरी मम्मी को तो ये पसंद नहीं है, मेरी मम्मी को वो पसंद है, ऐसा कुछ टाइप का, और वो उस पर वैसे कुछ एक्सप्रेशन बना रही है, तो वो अदर एक्टिंग में जाएगा। बट यस, प्रिटी में सिर्फ सिर्फ वो वीडियोस जाएंगी जहाँ पे पूरा फोकस इज ऑन हर फेस, और वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका फेस पे फोकस है, समझ आई। तो सेम फॉर द हैंडसम, अगर कोई लड़का अपने मसल्स दिखा रहा है, अपनी बॉडी की शेप दिखा रहा है, ओके, लाइक पूरा मतलब अपनी बॉडी शेप दिखा रहा है, मसल दिखा रहा है, देन इट विल बी अ गुड लुकिंग वीडियो। यस, कोई अगर लिपसिंग कर रहा है सॉन्ग पे, कोई एक्टिंग कर रहा है, वो इन गुड लुकिंग कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये आपको नोट डाउन करना है पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मैजिक। मैजिक, पेंटिंग, स्पेशल टैलेंट, ये आता है टैलेंट में। टैलेंट का फर्स्ट पार्ट इज मैजिक, अगर कोई मैजिक परफॉर्म करके दिखा रहा है तो मैजिक में आएगा। सेकंड इज पेंटिंग, अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग में आएगा। इंक्लूड रंगोली, रंगोली वाले वीडियोस भी पेंटिंग में आएंगे। पोर्ट्रेट पेंटिंग मेड फ्रॉम अनयूजुअल मटेरियल, सब पेंटिंग में जाएगा। इंक्लूड कैलीग्राफी, ड्राइंग ऑन लेटर्स ऑफ ब्यूटीफुल डिजाइन, बट ऑन पेपर, नॉट ऑन ह्यूमन स्किन। अगर कोई SR मतलब अल्फाबेट्स या फिर कोई कैलीग्राफी हाथों पे कर रहा है या बाजू पे कर रहा है, ह्यूमन स्किन पे कर रहा है, तो वो किस में जाएगा? अदर फैशन में। अगर यस, अगर वो पेज पे या किसी कॉपी पे लिख रहा है या फिर किसी ड्राइंग शीट पे लिख रहा है, तो वो पेंटिंग में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पेशल टैलेंट। स्पेशल टैलेंट में पर्सनल स्किल्स दैट मोस्ट पीपल कैन नॉट डू। ओके, पर्सनल स्किल्स जैसे कि एक्रोबैटिक मूव। एक्रोबैटिक मतलब जैसे कोई समर सॉल्ट करता है, जैसे उल्टी सीधी छलांगे लगाना बोलते हैं, जैसे स्पेशल टैलेंट जो बेसिकली सब नहीं कर सकते हैं, फ्लिपिंग वगैरह। ओके, सच काइंड ऑफ वीडियो जहाँ पे मतलब उल्टी सीधी छलांगे लगा के दिखाई जा रही हैं, बॉडी की ऐसी मूवमेंट दिखाई जा रही हैं, जैसे कि ब्रेकिंग कोकोनट विद हेड और हैंड, मतलब ऐसा काम जो अपने नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। मार्शल आर्ट का वीडियो है, फ्लिपिंग और जगलिंग कैप्स, ठीक है, जैसे कि कैप्स को 3-4 कैप्स को घुमा के दिखाना। ओके, ये बेसिकली टैलेंट में आएगा। Okay, such kind of videos will go into the special talent. Okay, so this is a special talent videos. Then next, ऐसा कंटेंट बहुत आता है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि स्पेशल टैलेंट में ही मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट इज आर्ट टैलेंट। अगर आर्ट टैलेंट का एक वास्ट वो है, प्लेटफॉर्म है, POI है, जिसमें आर्ट टैलेंट और हैक्स एंड क्राफ्ट में ये डिफरेंस है कि अगर कोई कार्विंग कर रहा है, वुड वर्किंग कर रहा है, या फ्रूट कार्विंग कर रहा है, सॉरी फ्रूट कार्विंग भी आर्ट टैलेंट में ही जाएगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में नहीं जाएगा, सॉरी आई वाज रॉन्ग। क्ले स्कल्पचर्स बना रहा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी करके दिखा रहा है, या फिर ऐसे दिखाया जा रहा है कि कैसे पोजेज लेके फोटोज क्लिक की जा सकती है, वो सब आर्ट टैलेंट में जाएगा। ओके, सो आर्ट टैलेंट का मतलब वो होता है कि ऐसा टैलेंट जो कि प्रोफेशनल ही कर सकता है, ठीक है। आर्ट का मतलब कुछ बनाना, पर ऐसा इंसान बना सकता है जो कि हर कोई नहीं बना सकता देख के। जैसे कि किसी का पुतला बनाना वो हम नहीं बना सकते ना, क्ले स्कल्पचर उसको बोल दिया हमने, वो आर्ट टैलेंट में चला गया। वुड वर्किंग मतलब वुड के ऊपर कुछ अच्छे डिजाइन बना दिए, वो भी हम नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते, जो बेसिकली वो सब आर्ट टैलेंट में जाएगा। ओके, सो हैक्स एंड क्राफ्ट, डिफरेंस विद हैक्स एंड क्राफ्ट इज आर्ट टैलेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। वही कि मैंने बताया, आर्ट टैलेंट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो ट्रेनर्स प्रोफेशनल्स होते हैं सिर्फ वही ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, वो आर्ट टैलेंट में जाएगी। बट ये कुछ वीडियोस जिनको देख के आप कुछ बना सकते हो, जैसे कि DIY वाली बहुत सारी वीडियोस आती है ना, कि घर पे छोटा मोटा कुछ क्राफ्टिंग का काम करना है, जैसे कि बनाना है, या फिर कोई कुछ भी ऐसा बना रहे, जैसे फ्लावर्स बना लिए घर पे बैठ के, वो सब हैक्स एंड क्राफ्ट में आएगा। मतलब जो कि हर कोई एक वीडियो देख के बना सकता है, वो चीज़ हैक्स एंड क्राफ्ट में आएगी। तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफरेंस विद मशीनरी, मशीनरी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आर्ट टैलेंट को? लॉट्स ऑफ आर्ट टैलेंट रिक्वायर्ड यूजेज ऑफ मशीन। इफ ह्यूमन स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द वीडियो, देन इट्स अ हार्ड टैलेंट। सो क्या है, एक हमारे पास मशीनरी भी एक करके POI है। सो मशीनरी से कैसे डिफरेंशिएट करना है? बेसिकली जो वुड वर्किंग का काम है या क्ले स्कल्पचर वाला काम है, उसमें मशीनों का भी यूज़ किया जाता है।
तो जहाँ पे ह्यूमन पावर ज़्यादा दिखाई है कि आदमी का फोकस ज़्यादा है, आदमी पे फोकस ज़्यादा है वीडियो पर, वही ज़्यादा उसके हाथ इन्वॉल्व हैं, उसका फेस है, उसकी वीडियो मतलब उस पे ज़्यादा फोकस है, तो वो आर्ट टैलेंट में आएगी। अगर मशीन पे ज़्यादा फोकस होगा तो वो मशीन में जाएगा। ओके, प्लीज ऑफ योर माइक, प्लीज ऑफ योर। ओके, प्रीति चावला प्लीज, इसके बाद आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेकंड टाइम यू आर डूइंग दिस। ओके प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट इज हैक्स एंड क्राफ्ट। हैक्स एंड क्राफ्ट का मैंने बताया, हैक्स का मतलब होता है कि जो लाइफ हैक हो गया, जैसे कि इस बालों में च्युइंगम चिपक गया, उसको कैसे उतारना है, किचन में कुछ गिर गया, उसको कैसे साफ करना है, ऐसे किचन क्लीनिंग टिप्स या फिर कोई सिंपल सिंपल टूल जिनसे घर का काम इजी बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते हो बहुत सारी टी शर्ट को रीयूज करके दिखा दिया, या फिर क्राफ्टिंग का काम। क्राफ्टिंग मतलब जैसे पेपर से कुछ फ्लावर्स बना लिए, ठीक है, कोई फर्नीचर को जोड़ के दिखा दिया या मल्टीपर्पज़ यूज़ दिखा दिया, जैसे कि एक टेबल को सोफ़ा कम बेड हो गया, पहले सोफ़ा था उसका बेड बना दिया, वो सब हैक्स एंड क्राफ्ट में जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्लॉग। ये सब लाइफस्टाइल में आते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉग। ब्लॉग मतलब कोई भी रैंडम शूटिंग कर रहा है, ठीक है, जो कि थोड़ी मीनिंगफुल है, जैसे कि कोई कहीं घूमने गया है, किसी पार्क में गया है, वहाँ की रिकॉर्डिंग कर रहा है, या फिर किसी स्टार की परफॉर्मेंस है, लाइक हम ऑडियंस में से ऑडियंस बन के उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। विल गो इनटू द व्लॉग पार्ट। ओके, कोई अपनी ट्रैवलिंग दिखा रहा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वीडियो में, जैसे कि व्लॉग बनाते हैं बेसिकली, आपने देखा होगा। तो ओके, विल गो इनटू द व्लॉग ओनली। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ। अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड टिप्स दे रहा है या कोई यूज़ बता रहा है जिससे आपकी हेल्थ सुधर सकती है, वो हेल्थ में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंफर्ट। व्हाट इज कंफर्ट? कंफर्ट इज बेसिकली ओसीडी वीडियोस। ओसीडी मीन्स जिसमें जैसे स्लाइम की वीडियोस होती है ना, स्लाइम को कुछ उसको बार बार उसको टच करके दिखा रहा है, जो बेसिकली आंखों को देखने को अच्छी लगती हैं। स्क्रैपिंग सोप को काट के दिखा रहे हैं, सैंड कटिंग दिखा रहे हैं, डिस्ट्रॉइंग कॉस्मेटिक, ये सब वीडियोस किस में जाती हैं? ओसीडी वीडियोस, लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोस। ओके, लाइक जिसको देख के थोड़ा कंफर्ट मिलता है। इफ यू वांट आई कैन प्ले ऑन यूट्यूब। ये बेसिकली सैंड सोप को कट करके दिखा रहे हैं। ओके, ये सब सोप कटिंग का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। वेरी सेटिस्फाइंग वीडियो। ये होता है स्लाइम, जैसे स्लाइम को काट के वो करके दिखा रहे हैं। ऐसे सब वीडियोस विल गो इनटू द कंफर्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज म्यूजिक, पीओआई, म्यूजिक कैटेगरी। म्यूजिक का जो फर्स्ट है म्यूजिक वीडियो। ओके, सो म्यूजिक वीडियो में कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग हो गया, बॉलीवुड सॉन्ग के जो क्लिप है जहाँ पे मूवी प्लॉट पे फोकस नहीं है, बेसिकली मैंने बताया जहाँ पे कोई सिंगिंग या डांसिंग कर रहा है, ठीक है, रोमांटिक वीडियोस दिखा रहे हैं जिनमें वो लोग डांस या सॉन्ग गा रहे हैं, जैसे या फिर जो म्यूजिक क्लिप्स हो गई, जैसे ध्वनि भानुशाली क्या नाम है उसका, सिंगर है, दर्शन रावल है, जो कि अपनी सोलो म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। ऐसी सब म्यूजिक वीडियो में जाएगी। अगर किसी वीडियो में इंस्ट्रूमेंट पे फोकस है तो वो जहाँ पे सिंगिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, अगर सिंगिंग है तो वो सिंगिंग में जाएगा। अगर सिंगिंग विद इंस्ट्रूमेंट है तो सिंगिंग में ही जाएगा। सिंगिंग विद इंस्ट्रूमेंट और विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके गा रहा है या बिना इंस्ट्रूमेंट के गा रहा है या फिर किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ गा रहा है, वो सिंगिंग नहीं जाएगा। बट अगर अकेला अकेला सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही बजाया जा रहा है, कोई सिंगिंग नहीं है, देन इट विल बी इंस्ट्रूमेंट वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट इज न्यूज़। न्यूज़ में पहले सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो गया, जैसे फाइटिंग, स्टीलिंग, रेप की वीडियोस, ऐसे सब वीडियोस विल गो इनटू द न्यूज़ पार्ट। पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिटिक्स में जाएगी, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज़। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में फर्स्ट इज फ्री रनिंग। फ्री रनिंग का नाम बेसिकली चेंज करके पार्कर स्पोर्ट्स रख दिया गया है सिस्टम पे। तो पार्कर स्पोर्ट्स क्या होता है? पार्कर स्पोर्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। बस जो बेसिकली दीवारों पे ऐसे भागते हैं ना, दीवारों पे भाग रहे हैं, छतों से एक छत से दूसरी छत पे कूद गए, ऐसे सब वीडियोस फ्री रनिंग में आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज जिम। जिम में कोई भी डिस्प्ले, फिटनेस और जो भी जिम के रिलेटेड कंटेंट आता है, योगा, मेडिटेशन, वेट लिफ्टिंग, एरोबिक्स, ट्रेडमिल फिटनेस। अगर कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है तो वो भी जिम में आएगा, ठीक है। अगर कोई रोड पे भाग रहा है
तो वो किस पे आएगा, अदर स्पोर्ट्स में आएगा। ये 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्या होती है, ऐसी स्पोर्ट्स जिसपे ह्यूमन लिमिट को चैलेंज मिल रहा है, जैसे कि बंजी जंपिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, स्नो बोर्डिंग, स्केटिंग करना भी एक्सट्रीम में ही मार्क करोगे, वेव सर्फिंग, माउंटेन साइकिलिंग। ओके, सच काइंड ऑफ वीडियोस विल गो इनटू द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल के वीडियोस जाएंगे, क्रिकेट में क्रिकेट के आएंगे, फुटबॉल में फुटबॉल के आएंगे, रेसलिंग में सभी WWE क्लिप्स आ सकते हैं, कबड्डी रेसलिंग में नहीं इंक्लूड करोगे आप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स। अदर स्पोर्ट्स में कौन सी वीडियोस आएगी, अगर कोई कबड्डी है, बॉक्सिंग, बाकी जो भी कोई स्पोर्ट है जो कि ऊपर वाले कैटेगरी पीवाइज में फॉल नहीं करती, जैसे फेंसिंग, ट्रैम्पोलिन, रग्बी, कराटे एक्सेट्रा, रनिंग ऑन टू द रोड, ट्रैक इज अदर स्पोर्ट्स। ओके, अगर कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है तो जिम में आएगा, अगर रोड पे भाग रहा है तो अदर स्पोर्ट्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सैट स्टेटस। स्टेटस, व्हाट इज स्टेटस वीडियो? स्टेटस आर दोस्त जो कि हम व्हाट्सएप पे जैसे लगाते हैं ना, स्टेटस लगाते हैं, कोई अगर सैड टॉपिक पे स्टेटस है तो सैड पे जाएगा। बेसिकली स्टेटस को अपने कैसे जज करना, मैं क्लियर बात बताती हूँ आपको। अगर किसी वीडियो में कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब लिखा हुआ इन सेंस कुछ लिरिक्स, जैसे सॉन्ग के लिरिक्स लिखे आ रहे हैं, या फिर कोई डायलॉग बोल रहा है, वो डायलॉग नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वो सब वीडियोस स्टेटस में ही जाएंगे। अब उसको आपने कैसे जज करना है, उसका जो लिखा हुआ पार्ट है उससे जज करना है। अगर सैड है लिखा हुआ तो सैड स्टेटस में जाएगा। अब सैड किस पे होना चाहिए, बेसिकली लव रिलेशन वाले टॉपिक के ऊपर, किसी का ब्रेकअप हुआ है वो सैड स्टेटस में जाएगा। ठीक है, या फिर कोई कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ज़िंदगी से, ऐसे काइंड ऑफ जो बहुत रोतलू से स्टेटस होता है वो सैड स्टेटस में जाएंगे। लव स्टेटस, लव स्टेटस का मतलब होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लव बेस्ड है, मतलब जो एक कपल के बीच में लव होता है उसके ऊपर बेस्ड, ना कि पेरेंट्स या सिबलिंग वाला लव नहीं आएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ कपल वाला लव आएगा। ओके, नेक्स्ट इज विश स्टेटस। विश स्टेटस का मतलब है अगर कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे किसी सेलिब्रिटी को, नॉट किसी रैंडम पर्सन को नहीं, किसी सेलिब्रिटी को, वो किस में जाएगा, विश स्टेटस में जाएगा। नेक्स्ट इज मोटो स्टेटस, अगर कोई लाइफ लेसन दे रहा है, बेसिकली कोई मोटिवेशनल या प्रिंसिपल्स लिखे हुए आ रहे हैं। ओके, सी मोटिवेशनल वीडियोस और मोटो स्टेटस में सिर्फ यही फर्क होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बोल रहा है और उसके नीचे कोई भी पार्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा, बट मोटो स्टेटस में क्या होगा कि नीचे वो लिखा हुआ भी आ रहा होगा, मतलब रिटन पार्ट में आ रहा होगा। विल गो इनटू द मोटो स्टेटस। नेक्स्ट इज अदर स्टेटस। अदर स्टेटस का मतलब है जो बाकी ऊपर बिलोंग नहीं करता वो अदर स्टेटस में आएगा, जैसे कि कोई भी ऐसा स्टेटस जो कि ऊपर वाले स्टेटस में फॉल नहीं कर रहा और उसमें कुछ लिरिक्स लिखे हुए हैं। ओके, लिरिक्स लिखे हुए विल गो इनटू द अदर स्टेटस। और सेलिब्रिटी की अगर कोई पिक्चर्स है, लाइक एक के बाद एक फोटो आ रही है किसी भी सेलिब्रिटी की, जैसे कि चाहे जन्नत जुबेर है जो कि एक आई थिंक टिकटॉक स्टार थी, है सॉरी, टिकटॉक स्टार है, वो सब किस में जाएगा, सेलिब्रिटी। एनी, आप क्या कर रहे हो बच्चे, इसको हटाओ प्लीज़। आप मेरे से बाद में डाउट ले सकते हैं। ओके, प्लीज़ इसको हटा दो क्योंकि अब हमारी भी शीट नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस पार्ट। आई विल एक्सप्लेन इन द डाउट सेशन, हम डाउट अभी लेंगे इसके बाद। ओके, सो यू कैन आस्क मी देन, यू कैन राइट इट डाउन इन योर शीट। तो सेलिब्रिटी की कोई भी पिक्चर्स है, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसको भी अदर स्टेटस में मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रैवल। ट्रैवल में फर्स्ट इज सीन्स, अगर कोई पूरा ब्यूटीफुल सीनरी दिखा रहा है, असली वाली, नकली वाली नहीं, अगर कोई अच्छी सीनरी दिखा रहा है किसी वीडियो में, अगर सीनरी के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ रहा है तो वो अदर स्टेटस या स्टेटस में मार्क करोगे, सीन में नहीं आएगा। सीन में कौन सी वीडियोज आएंगी मैं आपको बताती हूँ। ओके, सच वीडियो जहाँ पे नेचुरल सीनरी, नेचुरल सीनरी मतलब जो कि ह्यूमन मेड नहीं है, अर्थ का बना। ओके, सच काइंड ऑफ वीडियो जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज दिखाई जा रही हैं। अच्छी वाली वीडियोस होनी चाहिए, गंदी वाली कोई नाले की वीडियो बना के सीन में डाल रहा है तो वो गलत है। ओके, नेक्स्ट इज सिटी टाउन, अगर कोई किसी सिटी का आर्किटेक्चर या उसकी बिल्डिंग्स दिखा रहा है, विल गो इनटू द सिटी टाउन। अच्छी वाली वीडियो, ऐसी वाली वीडियो जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने अपने गली मोहल्ले की वीडियो बना के डाल दी तो वो सिटी टाउन में आएगा, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज दी जाएंगी, रेस्ट लो क्वालिटी। सच वीडियोस, ओके, लाइक जहाँ पे क्वालिटी इज वेरी गुड और okay, such videos will go into the city town. Next is
टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पार्ट है गैजेट्स। तो गैजेट्स और मशीनरी में कंफ्यूज नहीं होना। मशीनरी होती है जैसे कि फैक्ट्री की मशीन हो गया, जैसे ट्रैक्टर ट्रक वाला मैंने बताया पार्ट, अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे तो मशीनरी में आएगा। तो गैजेट्स का मतलब होता है जो टेक्निकल गैजेट्स होते हैं। गैजेट्स जैसे कि ईयरफोन्स हो गए, केबल्स हो गए, स्मार्ट होम हो गए, जो स्मार्ट गैजेट्स हैं जो कि आज के ज़माने के हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ओके, लैपटॉप्स हो गए। किसी का घर पूरा उसने ऑटोमेटिक लाइक इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है कि जैसे कि सोफे पे बैठ के रिमोट यूज़ करके लाइट ऑन करके दिखा रहे हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स विल गो इनटू द गैजेट्स। ईयरफोन्स, केबल्स, इनके ऊपर कोई रिव्यू दे रहा है, स्मार्ट वॉचेस के ऊपर कोई रिव्यू दे रहा है, वो सब किस पे जाएगा? गैजेट्स में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मशीनरी। तो मशीनरी का मतलब थोड़ा अलग होता है। मशीनरी मतलब जो कि नॉर्मल मशीनरी जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जेसीबी मशीन हो गई, कंक्रीट मिक्सचर्स हो गए जिनमें मतलब ये कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, ट्रक्स हो गए जो कि साइट्स पे मशीन्स पे वर्क कर रहे हैं, मतलब वर्किंग साइट्स पे। अगर ट्रक्स ऐसे ही दिखा रहे हैं रोड पे तो अदर ट्रांसपोर्टेशन है, बट अगर मशीन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क कर रहे हैं तो मशीन भी नहीं होंगे। ओके, बट नॉट राइडिंग ऑन रोड एज ए ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक डिजाइनिंग पीस ऑफ वुड। अगर कोई मशीन के लिए डिजाइन बना रही है वुड के ऊपर, ये बेसिकली ये चीज़ें बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि पुराने टाइप की चीज़ें थी, वो मशीनरी में जाएगी। जो आज के ज़माने की चीज़ें हैं विल गो इनटू द गैजेट्स। अब कोई घर के अंदर किसी ने फाउंटेन फुहारा लगाया हुआ है, फाउंटेन लगाया है, उसको आप मशीनरी में ऐड करोगे, ना कि गैजेट्स में। ओके, सो नेक्स्ट इज अदर टेक्नोलॉजी। अदर टेक्नोलॉजी में थोड़ा और हायर लेवल का टेक्नोलॉजी आ जाता है, जैसे कि AI, 5G, रोबोट, 3D प्रिंटिंग। ओके, लाइक जो गैजेट से भी ऊपर है, वो अदर टेक्नोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट इज ऑफबीट। ऑफबीट में फर्स्ट वन इज डिजास्टर। ओके, सो व्हाट इज अ डिजास्टर? डिजास्टर जो भी मतलब दैट आर नॉट मैन मेड, जैसे कि जो बेसिकली हमें मदर अर्थ से मिले हैं, जैसे कि बवंडर हो गया, ह्यूरिकेन, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना हो गया, फ्लड हो गया, हैवी रेन हो गया, लाइटनिंग हो गई, वॉल्केनो, हेल, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे सुनामी आ गई, ऐसे सब वीडियोस, ये सब किस में जाएंगे? डिजास्टर्स में जाएंगी। आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जैसे कि दिखा रहा है फ्लडिंग इन दिल्ली। ठीक है, ऑल सच वीडियोस विल गो इनटू द disasters only. Okay, so including man-made disasters like fire in the building or factory. Okay, ये भी अभी इंक्लूड किया है थिंक उन्होंने। तो अगर कोई किसी बिल्डिंग या फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वो भी डिजास्टर में मार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड। ये सब ऑफबीट के अंदर है। ओके, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी। अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाया गया है, बेसिकली स्पेशल इफेक्ट डाल के दिखाएगी चीज़ें, या फिर यूएफओ की वीडियो, वो सब अनएक्सपेक्टेड में जाएंगी। आपको दिखाती हूँ, ये बेसिकली नकली है बट ये यूएफओ का वीडियो दिखाया गया तो इसको हमने अनएक्सपेक्टेड में डालना है। ओके, ऐसा पार्ट जिसमें लाइक कुछ भी फेक एनिमेशन करके स्पेशल इफेक्ट डाल के कुछ दिखाया गया। ओके, जैसे कि टाइम पे आगे कुछ चेंज कर दिया है स्पेशल इफेक्ट्स डाल के, ऐसे सभी वीडियोस आपने अनएक्सपेक्टेड में मार्क करनी है। ये सब बेसिकली सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स डाल के कुछ ना कुछ बनाया है, ये सब अनएक्सपेक्टेड में रहेगा। नेक्स्ट इज फैक्ट्स। अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई कॉमन सेंस या कोल्ड नॉलेज दे रहा है, या पॉपुलर साइंस है, सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताया जा रहा है, या किसी गिफ्टेड स्मार्ट चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है, फैक्ट्स में आएगा, ये नॉलेज के अंदर आते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल टॉपिक पे बताई गई है बात, एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है, कोई ट्यूटोरियल बता रहे हैं किसी ऐप को यूज़ कैसे किया जाता है, किसी और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर कोई कैसे किसी कैमरा से कैसे रीटच किया जाता है, ये सब ट्यूटोरियल में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अदर्स। बाकी जो जितना भी कंटेंट बचता है जो ऊपर किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है बट कंटेंट अच्छा है बेसिकली। ओके, मतलब आपके हिसाब से इसको लो क्वालिटी तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ कंटेंट अच्छा है पर कहीं और फॉल नहीं कर रहा है तो वो अदर्स में जाएगा। वीडियोज विच इज गुड क्वालिटी बट डजंट बिलोंग टू अदर अबव पीओआई, फैंसी लाइटर टॉय डिस्प्ले लो क्वालिटी वीडियो डज नॉट नीड अ पीओआई। ठीक है, तो वो अदर्स में जाएंगी। So this is all about the POI training. Okay, so this is all about the POI training. Okay, so I just